Good evening, my dear students. We will be discussing today prosthodontics, fixed partial denture. Most important for your clinical advantage as well as theoretical advantage. Many times we are asked questions like Pontic, connector, retainer. At that time we are able to answer the questions. But what about ceramics? It's a wide and enriched topic in which you will be confused with many of the questions like what to answer. For example, Dicor, Dicor MGC. So all these ceramics properties come under fixed partial denture only. What is a veneer? What are its line angles, finish lines? What are the various casting defects? All these questions you will be asked when you appear for theory exam as well as for interview purpose. Now we will start today's lecture with few MCQs. After that we will come to our FPD portion. First question on your screen: in metal ceramic restorations, okay, ceramic is fused to metal or metal fused ceramic, failure or fracture, this is most important question, occurs at the porcelain metal interface rather than in the porcelain. Okay, this is the first sentence, one, and this is second sentence. The combination of porcelain and metal fused together is stronger than the porcelain alone. Now in your exam, if this question is asked, you'll be confused regarding the properties of porcelain alone or metal fused to porcelain, okay, or porcelain fused to metal, PFM, okay. So here in metal ceramic restorations, where does the fracture occurs? At the porcelain metal interface or in the porcelain? That is the first question. And second is, combination of porcelain metal is stronger than porcelain. You have to answer this question. After that, your answer, we will discuss this solution and then we will proceed to our topic. If you don't know the answer, please write E or we don't know. Let's see. First statement is false, second is true. Okay, let's see what's the answer. The first statement is false and second is true. Correct. Here the major drawback of fracture is the fusion point where the metal and ceramic are combined. Okay, so that is important. And when porcelain is fused to metal, it is stronger than porcelain alone. So your answer is correct. Now apart from this, okay, apart from this, few important points are there regarding metal ceramic crown. The thickness, when you have to use metal under the ceramic, the thickness of metal substructure should be 0.5 millimeter. So as I have already previously mentioned to you that whatever these numerics or digits
will be coming, you have to write in your notes that separately. Minimum porcelain thickness is 1 to 1.5 mm. Then above, when you go for this preparation, for metal you require 0.5 mm, okay, and for porcelain you require 1 to 1.5 mm. So when you combine this for porcelain or PFM, metal ceramic crown, you have to go for 1.5 to 2 millimeter reduction, okay, because 0.5 mm you require for metal and 1 to 1.5 mm for porcelain or ceramic, okay. Now when you are using ceramic, on labial side always there will be shoulder, okay, it's a margin, right angle margin. It is 1.5 millimeter, its width, it should be 1.5 millimeter. Why? Because it has to withstand the forces, it has to withstand the stresses. The minimum it should be 1.5 millimeter in case of shoulder margin. Now one more MCQ. The most frequent cause of porosity in the porcelain. Okay, porcelain can have porosity. What's the most frequent cause or the most important reason? It's inadequate condensation. Okay, condensation is not proper or inadequate. This leads to porosity. Okay, now depending upon the shape and size of particle, you have to go for condensing porcelain. So this is also an important MCQ. The condensation of porcelain depends on size and shape of particle. For porosity reduction, what is important? Condensation is important. What is the main reason of porosity? That is inadequate condensation. So this explanation is very important because you can answer many of the questions. Okay. Now porcelain, its property. Compressive forces, it can withstand more. It is stronger under compressive. Okay. And less resistant to tensile forces. So you have to understand this thing. When it is compressed, it can withstand the stress. When it is given tension, it has tendency for fracture. Okay. Now how to avoid porcelain fracture? It can be avoided by keeping the angles of the preparation rounded. So from this explanation, at least 3 to 4 MCQ will be asked. This is most important when your ceramic is concerned. 3 to 4 MCQs will be asked. Okay. First of all, thickness of metal 0.5 mm, of porcelain 1.1 to 1.5 mm. So when you accumulate or when you combine both this thickness, it is around 1.5 to 2. In case of shoulder, you have 1.5 mm. Now regarding its drawback, most frequent cause of porosity in porcelain is inadequate condensation. Condensation is related to porosity. You have to prepare your notes in this way. Okay, inadequate condensation, then more porosity. Okay, then condensation also depends on shape and size of particle. Okay, now compressive strength. ठीक है.
Here, how compressive strength is attained in metal ceramic crown. Okay, how? Because the coefficient of thermal expansion of the metal, the underlying metal substrate, its expansion coefficient of thermal expansion is higher than that of bonded porcelain. Okay, so whatever forces are applied to this porcelain, it will be directed to metal, and this metal provides proper support. Okay, till now if you are having a फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, उसमें आएंगे हम टूथ प्रिपरेशन पर। ठीक है, तो अब ये समझिए कि आपको टूथ प्रिपरेशन करना है तो क्या क्या ध्यान रखना है, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि आपको बचाना है टूथ को, कंजर्वेटिव अप्रोच रखना है, उसमें आएगा बायोलॉजी। फिर टूथ के अंदर आप सपोर्ट के लिए, रिटेंशन के लिए, उसके लिए आएगा मैकेनिकल, और तीसरा आएगा एस्थेटिक्स। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे अभी टूथ प्रिपरेशन के प्रिंसिपल्स। पहला आएगा बायोलॉजी। अगर आपकी स्क्रीन पर ठीक है, आप पढ़ सकते हो तो बोलिए। अगर आपको थोड़ा जूम आउट करना है तो भी हमको कमेंट करके बताइए। तो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है, ये आपको कभी कभार इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ टूथ प्रिपरेशन। ओके, तो बायोलॉजिकल में क्या है कि आपके जो भी टिश्यूज है, ओरल हेल्थ, हार्ड, सॉफ्ट, कोई भी टिश्यूज, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजरी से आपको बचाना है। कहाँ कहाँ पे, तो कि जहाँ पे थिन जिंजाइवल टिश्यूज होते हैं, मोलर्स के लिंगुअल सरफेस पर और प्रीमोलर्स के बक्कल सरफेस पर, वहाँ पे आपको थोड़ा अप्रोच कंजर्वेटिव रखना है। जिंजाइवा को इंजरी नहीं होनी है। तो मैकेनिकल इंजरी से बचाना है टूथ को, थर्मल इंजरी से बचाना है, केमिकल इंजरी से बचाना है, और बैक्टीरियल इंजरी से बचाना है। ठीक है, तो बैक्टीरियल इंजरी मतलब आप कोई भी प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, उस पर क्राउन लगाओगे तो वहाँ पे लीकेज नहीं होना चाहिए, वहाँ पे बैक्टीरिया अंदर नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो बायोलॉजिकल, उसमें मैकेनिकल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंजर नहीं करना है सॉफ्ट और हार्ड टिश्यूज को। थर्मल, जब भी आप पल्प के नज़दीक आते हो प्रिपरेशन के टाइम, तब आपको ध्यान रखना है ठीक से एरोटर का कूलेंट होना चाहिए, पानी का यूज होना चाहिए, लाइट प्रेशर होना चाहिए, और आपको अगर लगता है कि बहुत डीप हो तो आपको एट्रोमेटिक प्रिपरेशन करना चाहिए। विदाउट एरोटर ऑल्सो यू कैन समटाइम्स रिमूव कैरीज। केमिकल इंजरी, ठीक है, आप जिंजर रिट्रैक्शन के लिए कोई भी कॉर्ड यूज करते हो तो आपको उसका लिमिट याद होना चाहिए। ठीक है, फिर जो आप सीमेंट यूज करते हो लूटिंग के लिए, वो भी इरिटेट नहीं करना चाहिए। तो ये होगी आपकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। अब आता है मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में क्या है, जैसे आपने डेंचर में पढ़ा था, रिटेंशन, स्टेबिलिटी, वो होना चाहिए ताकि डेंचर टिक सके। तो यहाँ भी टूथ के ऊपर आप जो क्राउन लगाते हो उसमें सारे फीचर्स होने चाहिए। पहला तो ये कि रिटेंशन होना चाहिए उसमें। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस, आप कोई भी फोर्स दो ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल, उसको वो रेजिस्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर टेपर और पैरेललिज्म, जब आप प्रिपेयर करोगे तो यहाँ पे आपका टूथ है, तो ये और ये, तो इस साइड 3 डिग्री, इस साइड 3 डिग्री। ठीक है, तो ये मिनिमम, और मैक्सिमम इस साइड 6 और इस साइड 6।
ठीक है, तो इसका टोटल हुआ 6 और इसका टोटल हुआ 12। तो इतना टेपर आप रख सकते हो। ठीक है, टेपर का क्या फायदा होगा, आपको जो पाथ ऑफ इंसर्शन है वो हो जाएगा, फोर्स भी ट्रांसफर सही होंगे। ठीक है, एक साइड टेपर रखा दूसरी साइड नहीं रखा तो क्या हो जाएगा, एक साइड ही फोर्स ट्रांसफर होगा, दूसरी साइड बाहर चला जाएगा तो क्राउन बाहर निकल कर आ जाएगा, क्राउन फ्रैक्चर के भी चांस है। ठीक है, ये सब होगा। फिर हाइट और लेंथ, कोई कभी कभार देखा होगा कि रूट स्टम्प है उस पर थोड़ा ही क्राउन है। ठीक है, तो उस पर आप लगा नहीं सकते हो, तो आपको क्राउन लेंथनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर पोस्ट एंड कोर करके ऊपर का कोर बिल्डअप करना होगा। तो ये हो गया उसका हाइट और लेंथ का इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे देखिए, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा टूथ का सरफेस है उसके ऊपर क्राउन बिठेगा तो उतना रिटेंशन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इंसाइजर और प्रीमोलर में मिनिमम 3 mm तो होना ही चाहिए हाइट क्राउन के लिए, और मोलर्स में 4 mm। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि मिनिमम कितनी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, बार बार एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे होगा तो ठीक है मैं बता देता हूँ, क्राउन रूट रेशियो। ठीक है, तो वो आइडियल होगा, ऑप्टिमम होगा और मिनिमम होगा। आइडियल होगा 12, 23 और 11। ठीक है, यहाँ पे आपको रेशियो लगा देना है। तो आइडियल क्राउन रूट रेशियो कितना हुआ, 1 क्राउन होगा और 2 जितना रूट होगा। ठीक है, फिर ऑप्टिमम, तो 2:3, क्राउन 2 होगा तो 3 रूट होगा, और मिनिमम दोनों इक्वल तो होने ही चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप क्राउन वो लगा सकोगे। ठीक है, आगे आएगा वो सब। फिर आएगा बक्कल ग्रूव्स, क्या करते हैं, इंक्रीज रिटेंशन। आप क्राउन के अंदर थोड़े बक्कल ग्रूव्स लगा दोगे तो ये रिटेंशन बढ़ाएंगे, और प्रॉक्सिमल ग्रूव्स रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि रिटेंशन बढ़ाने वाले फीचर्स इसमें से कौन कौन से हैं, तो वो आएंगे बक्कल ग्रूव्स। ठीक है, इंक्रीज रिटेंशन, और प्रॉक्सिमल ग्रूव्स जो होते हैं वो इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस। तो अब ये डाउट नहीं होना चाहिए आपको कभी भी। ठीक है, फिर कितना रिडक्शन करना होगा। ठीक है, तो मिनिमम आपको 1.5 टू 2 mm रिडक्शन करना होगा। शोल्डर वो पोर्सलेन होगा, सिरामिक होगा, उसकी ये बात कर रहे हैं। फिर क्लियरेंस, ठीक है, तो अपोजिंग टूथ और टूथ जो प्रिपेयर किया है उसके भी बीच में 1.5 टू 2 mm की स्पेस रखनी है। ठीक है, अब कितना थिकनेस रखना है मेटल के लिए। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था मेटल के लिए कम चाहिए, तो मेटल के लिए 0.5 mm मार्जिन चाहिए, और जहाँ पे कांटेक्ट नहीं है नॉन फंक्शनल कस्प वहाँ पे 1, और यहाँ पे 1.5 फंक्शनल कस्प पर। ठीक है, तो ये बार बार एमसीक्यू आते रहते हैं, फंक्शनल कस्प पर कितना होना चाहिए। ठीक है, फिर नॉन फंक्शनल कस्प पर कितना होना चाहिए। ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आएंगे तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर सिरामिक क्राउन सब जगह 1.5 तो होना ही चाहिए, और मेटल सिरामिक क्राउन इसमें 1.5 जहाँ पे नॉन कांटेक्ट है और 2 मिलीमीटर जहाँ पे कांटेक्ट है। ठीक है, तो ये जो चार्ट है ये टेबल आपको रेडीमेड बनाया गया है, बना के दे दिया है आपको, तो आपको नोट्स में डायरेक्टली कॉपी करना है
और ये आपको याद होना चाहिए, मेटल में कितना, सिरामिक में कितना और मेटल सिरामिक में कितना। ठीक है। अब तीसरा प्रिंसिपल, एस्थेटिक्स। ठीक है। जो भी आप रिस्टोरेशन करते हो तो वो एस्थेटिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए। ठीक है। अब मार्जिन्स के बारे में पढ़िए। मार्जिन्स जो होते हैं टूथ के, वो तीन टाइप के होते हैं। एक तो जिंजाइवा के ऊपर होता है, वो है सुप्रा जिंजाइवल। एट द जिंजाइवल तो इक्वी जिंजाइवल, और बिलो द जिंजाइवा तो वो सब जिंजाइवल। ठीक है। तो सुप्रा जिंजाइवल रखोगे तो उसका क्या फायदा होगा, उसमें आप क्लीन कर सकोगे और हेल्थ अच्छी रहेगी जिंजाइवा की। फिर सब जिंजाइवल में क्या होगा, सब जिंजाइवल में एस्थेटिक्स अच्छा होगा और हेल्थ खराब होगी, क्योंकि वो जिंजाइवा को इंटरफियर करता है। तो अगर आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच मार्जिन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू, तो आपको ये आंसर बताना है। तीनों के अलग अलग काम है, तीनों के अलग अलग रोल है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टूथ प्रिपरेशन, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशंस, आई वुड सिलेक्ट द मार्जिन। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब मार्जिन जो आपको बताया तीन टाइप की होती है, सुप्रा जिंजाइवल, इक्वी और सब जिंजाइवल। अभी कौन कौन से अलग अलग टाइप की मार्जिन्स आप रखोगे। ठीक है। तो पहले आएगी फेदर एज। तो फेदर एज में देखिए, यहाँ से सीधा मार्जिन, ठीक है, स्लाइड फेदर जैसी एज लगेगी आपको। ठीक है। उतना कोई डिस्टिंक्शन है नहीं। तो वो कब काम आता है, तो गोल्ड के लिए बेस्ट है। गोल्ड का रिस्टोरेशन करोगे, गोल्ड का क्राउन, तो फेदर एज बेस्ट है। फिर वेरी एक्यूट और थिन मार्जिन है, वेरी थिन और लेस इन्वेजिव। लेस इन्वेजिव का मतलब वो ज़्यादा जिंजाइवा और हार्ट टिश्यू को परेशान नहीं करेगा। ठीक है। अब उसके डिसएडवांटेजेस तो क्या है, कभी कभार मार्जिन इतनी छोटी होती है तो जो ऊपर क्राउन लगेगा ना, वो ओवर कंट्रोल हो जाएगा। उसकी कुछ थिकनेस तो रखनी पड़ेगी, उसकी कुछ विड्थ रखनी पड़ेगी। तो मार्जिन जब छोटा होता है, ठीक है, तो दांत के ऊपर दांत बिठाएंगे तो उसका कभी कभार ओवर कंट्रोल हो सकता है, ज़्यादा बल्क आपको लगेगा। ठीक है। तो ये फेदर एज का ये प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, मार्जिन कम है इसलिए ओवर बल्क हो जाएगा और डिफ़िकल्ट टू विजुअलाइज। आप ठीक से मार्जिन कंप्लीटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आपका जो वैक्स पैटर्न करोगे इस पर, तो कहीं ना कहीं आप मार्जिन से थोड़ा शॉर्ट या ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दोगे, तो कहीं ना कहीं लीकेज हो जाएगा क्राउन लगाने के बाद। ठीक है। दूसरा आता है लाइट शैम्फर। ठीक है। तो लाइट शैम्फर देखिए, यहाँ पे एंगल होगा, ठीक है, ऐसे आया, ठीक है, ऐसे आया और ऐसे लाइट शैम्फर दिया। उसमें 0.3 टू 0.5 mm थिकनेस होती है। कब दे सकते हैं, तो गोल्ड क्राउन में, ये भी गोल्ड क्राउन में, ये भी गोल्ड में। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आता है हेवी शैम्फर। ठीक है। तो हेवी शैम्फर देखिए, इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ गई। तो हेवी शैम्फर कब आएगा, तो जब पोर्सलेन फ्यूज टू मेटल उसकी लिंगुअल सरफेस पर आएगा। लिंगुअल सरफेस ऑफ मेटल सिरामिक क्राउन, ठीक है, वहां पे शैम्फर देते हैं। ठीक है। और अब आता है शोल्डर। तो शोल्डर देखिए राइट एंगल जैसा बना दिया है।
तो वो शोल्डर कब देते हैं? ओनली इन पोर्सलेन। और उसकी थिकनेस 1 to 1.5 है। एस्थेटिक्स बढ़ाता है, ठीक है। और कभी कभार टूथ को हम ज़्यादा रिमूव करना पड़ता है शोल्डर बनाने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं? अभी आपने देखा कि शेम्फर कहाँ लगेगा? मेटल सिरामिक सरफेस के लिंगुअल सरफेस पर। तो बक्कल सरफेस पर क्या लगेगा? मेटल सिरामिक, ये शोल्डर लगेगा। और ऑल सिरामिक पर शोल्डर लगेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब आता है इनडायरेक्ट रिस्टोरेशंस, ठीक है। डायरेक्ट कौन सा हुआ? आपने खड्डा बनाया, ठीक है, और लगा दिया तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है, वो अंदर लग जाएगा। लेकिन आपने कैविटी बनाई और कंपोजिट किया तो डायरेक्ट हो गया। जीएसी किया तो डायरेक्ट। लेकिन कैविटी बनाई, फिर उसका वैक्स पैटर्न बनाया, इम्प्रेशन ली, और वो फिर कास्टिंग करने भेजा और वो बन के आया, ठीक है। तब जाके उसको बोलेंगे हम इनले। ये अंदर जो लगता है उसको बोलेंगे इनले। ये हो गया ऑनले, ठीक है। टूथ के ऊपर के सरफेस को कवर कर देगा एक से ज़्यादा कस्प को, उसको बोलते हैं ऑनले। टूथ के अंदर चला गया उसको बोलते हैं इनले, ठीक है। ये कवर द कस्प, ये कस्प के अंदर होता है। और पार्शियल क्राउन कभी कभार क्या होता है? कभी कभार अपर का प्रीमोलर होता है ना, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे? बक्कल सरफेस जो होगी ना, वो ऐसे ही रख देंगे एस्टेरिक्स के लिए। बाकी सबको प्रिपेयर करेंगे तीनों को, और एक सरफेस खाली रखेंगे, ठीक है। फिर वो क्राउन लगा देंगे तो उसको बोलते हैं 3/4 क्राउन। तीन सरफेस प्रिपरेशन कर दी, एक को बाकी रखा, तो वो बोलेंगे 3/4 क्राउन, ठीक है। तो ऐसे आपको अलग अलग मॉडिफिकेशंस आने चाहिए, ठीक है। फिर जो 7/8 क्राउन होगा वो कहाँ पे होगा? जो अपर मैक्सिलरी मोलर होगा उसमें मिजियोबक्कल कस्प के अलावा सब जगह पर क्राउन आ जाएगा, ठीक है। तो वो बोलते हैं 7/8 क्राउन। उसके कुछ फायदे भी है, टूथ स्ट्रक्चर बचाता है, ठीक है। फिर क्या करता है? आप इजीली सीट करवा सकते हो। फिर क्या होगा? पेशेंट का एस्थेटिक्स कंजर्वेशन हो जाएगा, पेशेंट का एस्थेटिक्स रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। पॉन्टिक और कनेक्टेड डिजाइन, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। आपको 3/4 क्राउन समझना है, 7/8 क्राउन समझना है, तो मुझे बताइए।
कोई बात नहीं, क्राउन लेंथनिंग थोड़ा समझा देता हूँ। जब भी कोई पेशेंट आपके क्लिनिक पर आया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि मेरा सर क्राउन लगाना है। फिर आपने देखा कि ये आपका प्रीमोलर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे 6 नहीं है और आपका ये 7 है। तो 6 की जो हाइट है रूट स्टम्प्स, वो इतनी हाइट है, ठीक है। अब ऐसा पेशेंट आता है कि मुझे क्राउन चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आइडियली इतनी हाइट है आपके पास, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा जिंजाइवा रिमूव कर दोगे, ठीक है, तो ये आपकी हाइट हो गई, नई हाइट, इस पर आप क्राउन बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया पेरियो वाला क्राउन लेंथनिंग, ठीक है। गम्स को निकाल देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे का पूरा गम्स को निकाल देना है, उसको लिमिट में, विद इन बायोलॉजिकल एज वेल एज अदर लिमिट्स ऑल्सो। फिर ये एक अलग ऑप्शन हो गई, ठीक है, क्योंकि मिनिमम आपने देखा कि 4 मिलीमीटर हाइट तो चाहिए ही चाहिए क्राउन की, यहाँ पे 2 थी, तो आपने क्या किया, 2 मिलीमीटर गम्स को लेज़र से निकाल दिया, ठीक है। अभी तो लेज़र आ गए हैं, पहले आप स्कैल्पेल या नाइफ से करते थे, अभी तो लेज़र से आप मस्त प्रिसिशन वाला कट दे सकते हो, ठीक है, हीलिंग भी अच्छा हो जाएगा। अभी बात क्या है कि 4 मिलीमीटर तो चाहिए ही चाहिए, चलो 4 नहीं तो 3 मिलीमीटर चाहिए, तो आपने गम्स को निकाल दिया, ये लेज़र से यहाँ के जो साइड का गम था वो आपने रिमूव कर दिया। अब ये समझिए कि आपको पेरियो वाला इंटरवेंशन नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पोस्ट लगा दोगे और थोड़ा क्राउन बिल्डअप कर दोगे, ठीक है। फिर इस पर भी क्राउन बन सकता है, तो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो क्राउन लेंथनिंग का ये पेरियो वाला जो आपको समझाया वो आपको खाली याद रखना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। क्राउन लेंथनिंग कब करते हैं, जब आपके पास हाइट नहीं सफिशिएंट, तब आपको करना है। किसी को स्क्रीन डिस्प्ले में दिक्कत हो तो मुझे बताइए।
देखते हैं, अभी जब बीच में बंद हो जाए तो मुझे बोलना, हम वो अपडेट कर देंगे। ठीक है। नाउ वी कम टू अवर न्यू टॉपिक, पॉन्टिक। पहले तो क्या किया लोगों ने, गम्स के ऊपर, पहले तो पॉन्टिक का डेफिनेशन समझ लीजिए। जो दांत निकल गया, कोई पेशेंट आता है आपके पास कि मुझे दांत लगाना है, तो वो जो दांत निकल गया उसकी जगह जो दांत आता है ना, उसको बोलते हैं पॉन्टिक। आजू बाजू के दांत को सपोर्ट लिया आपने, इसके ऊपर जो लगता है वो हो गया रिटेनर, और जो दांत सपोर्ट दिया वो हो गया एबटमेंट। ठीक है। रिटेनर और पॉन्टिक के बीच जो यहाँ बॉन्ड होता है वो हो गया आपका कनेक्टर। ठीक है। तो अब ये सब पॉइंट समझ लिया, पॉन्टिक किसको बोलते हैं। पॉन्टिक नेचुरल टूथ की जगह पर लगने वाला दांत। रिटेनर क्या होता है, जो एबटमेंट टूथ पर लगता है ना, वो रिटेन करवाता है। और कनेक्टर क्या करता है, तो पॉन्टिक और रिटेनर को कनेक्ट करता है। ठीक है। ऐसे आपको आइडिया होना चाहिए। कभी कभार दो साइड टू साइड टीथ होते हैं, तो रिटेनर टू रिटेनर भी कनेक्ट होता है। ठीक है। जो रिटेनर को कनेक्ट करता है, रिटेनर पॉन्टिक को कनेक्ट करता है, वो हो गया आपका कनेक्टर। ठीक है। अब आ गया पॉन्टिक की डिज़ाइन। तो क्या किया, जब दांत निकल गया सिक्स, लोअर सिक्स, तो उस पर जो आप पॉन्टिक लगाओगे, तो एक थ्योरी ऐसी है कि गम्स के ऊपर 2 मिलीमीटर की जगह रखना है। उससे क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर आपको साफ करना है, हाइजीन आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। बट उसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, वहाँ पे एस्थेटिक्स नहीं है। ठीक है। तो ये ऑब्वियसली एंटीरियर टूथ में आप नहीं कर सकते हो। फिर हो गया दूसरा क्या, कि आपको ठीक तरह से पीछे का जो स्पेस होता है टूथ का, वो इनफ होना चाहिए। ठीक है। ऊपर का टीथ हो गया सुप्रा इरप्टेड। ठीक है। ऊपर का दांत थोड़ा नीचे है, तो आप ये स्पेस नहीं दे सकते हो। ठीक है। तो इस स्पेस नहीं दे सकते, तो आपको ये कॉन्टैक्ट वाला पॉन्टिक लेना पड़ेगा बाद में। ठीक है। अगर सुप्रा इरप्टेड है ना, तो ये उसका लिमिट हो गया। हाइजीनिक पॉन्टिक आप सुप्रा इरप्टेड टूथ में यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है। और वीडी कम होगा तो भी आप नहीं कर सकते हो। फिर आ गया सैडल और रिज लैब। ठीक है। लोगों ने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, दे हैड गॉन फॉर modification, that we don't want space here, we want direct contact. So this is like saddle of a horse. ठीक है। on the reach you have to go with contact to contact, the pontic will sit on this. So this is saddle or ridge lap. But problems are there. First is our tissue will be irritated. Second is it is unable to clean. Then many periodontal problems can arise. ठीक है। तो पहले जो बनाया था हाइजीनिक, उसमें लोगों ने क्या किया, उसमें रीच के ऊपर गैप रखा। तो यहाँ पे दिक्कत आई कि अगर सुपर इरप्टेड टूथ है तो आप नहीं लगा सकते, फिर ये गैप दिखेगा, हाइजीन नहीं रहेगा। कभी कभार पेशेंट को खाने के टाइम भी ऐसा लगता था कि यहाँ पे खाना फंस जाएगा, तो भी वो ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसे उसके ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है। फिर ये लोगों ने क्या किया,
वो गैप निकाल दिया और कांटेक्ट रखकर ही पॉन्टिक बना दिया। ठीक है, ये रिज के ऊपर सैडल, जो हॉर्स पर आप बैठते हो ना सैडल पर, ऐसे पॉन्टिक की अंडर सरफेस रखी, तो वो क्लीन करना नामुमकिन हो गया। फिर पेरिडोंटल टिश्यूज आ गए प्रॉब्लम में। ठीक है, तो ये आपको क्या हुआ, थोड़ा और मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत हो गई। तो ये लोगों ने क्या किया कि अब टिश्यू को कम से कम इरिटेट करना है। ठीक है, तो खाली कॉनिकल शेप का रखो जहाँ पे कम से कम कांटेक्ट हो। ठीक है, तो इसके फायदे क्या है, एस्थेटिक्स भी अच्छा है, हाइजीनिक भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके प्रॉब्लम्स होते हैं। वो इतना हाइजीनिक नहीं जितना कि हाइजीनिक पॉन्टिक है, वो आप ठीक से साफ नहीं कर सकते हो दोनों साइड से। ठीक है, और एस्थेटिक भी है लेकिन बहुत बढ़िया एस्थेटिक नहीं। अदरवाइज एस्थेटिक कैसा होना चाहिए, जैसे कि प्रोफाइल जो होती है टीथ की, ऐसे ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तो ये लोगों ने क्या किया, गम रखा और यहाँ पे रख दिया, तो ये खड्डा दिखेगा। ठीक है, तो डिप्रेशन दिखेगा तो वो एस्थेटिक नहीं हम मानेंगे। फिर आता है मॉडिफाइड रिज लैप। ठीक है, पहले हमने देखा कि रिज को लैप कर दिया पहले, इससे पहले। अब ये लोगों ने बोला कि एक ही साइड पर कांटेक्ट रखो, बाकी का लिंगुअल सरफेस है वहां पे ओपन रखो। ठीक है, तो वो खाली कांटेक्ट एक ही जगह पर रहेगा यहाँ पे। ये वाला एस्थेटिक के लिए काम आएगा, हाइजीनिक के लिए काम आएगा, ये वाला एस्थेटिक के लिए। ठीक है, तो इसका एस्थेटिक्स अच्छा है। लिंगुअल जो है वो कॉनिकल डिज़ाइन जैसा है जो हाइजीन भी मेंटेन कर सकता है। ठीक है, और उसके ड्रॉबैक्स, कभी कभार वो उतना बेस्ट नहीं जितना हमारा टूथ होता है, ऐसा। ठीक है, अब आता है ओवेट। तो ओवेट पॉन्टिक क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये टूथ हमने जो नेचुरल टूथ होते हैं उसकी तरह ही सॉकेट के अंदर चला जाता है। जिंजाइवा जो है वो एक मस्त प्रोफाइल आ जाएगी उसके ऊपर। तो ये बेस्ट एस्थेटिक्स है, इमरजेंस प्रोफाइल भी बेस्ट है। तो जब भी आपको एमसीक्यू में आए कि एस्थेटिक्स, गुड इमरजेंस प्रोफाइल, ये सारे क्वेश्चंस आपको ओवेट में ले जाएंगे। और रिसेंट एक्सट्रैक्शन सॉकेट, उसमें भी ओवेट पॉन्टिक आएगा। ठीक है, तो ये पॉन्टिक का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछे तो भी अच्छा है, इंटरव्यू में पूछे तो आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, पॉन्टिक में कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब आता है कनेक्टर्स। तो कनेक्टर क्या करेगा, वो कनेक्ट करेगा किसको, रिटेनर को पॉन्टिक से, पॉन्टिक को रिटेनर से, और रिटेनर रिटेनर को ऐसे कनेक्ट करने वाला चीज़ वो है कनेक्टर। ठीक है, तो वो मिनिमम 3 मिलीमीटर तो होना ही चाहिए। यहाँ पे ये जो कनेक्टर है ना वो नॉन रिजिड है, कभी कभार टूथ इंक्लाइंड होता है ऐसे। ठीक है, और ये टूथ ऐसे इंक्लाइंड होता है, तो इस पर आप कोई भी एफपीडी लगा नहीं पाओगे जो एक ही पाथ ऑफ इंसर्शन और रिमूवल वाला होगा। तो आप क्या करोगे, आगे के जो यूनिट है ना वो इसको साथ में रखोगे, यहाँ पे नॉन रिजिड कनेक्टर दे दोगे। ठीक है, और पीछे वाले दांत पर रिटेनर दे दोगे। तो यहाँ पे एक रिटेनर आएगा जो बैठ गया, फिर दूसरा वाला पोर्शन है एफपीडी का वो यहाँ पे आ गया, और ये फिक्स हो जाएंगे मेल कंपोनेंट और फीमेल कंपोनेंट, फिर वो ऐसे यूनिट हो जाएंगे। ठीक है,
तो नॉन रिजिड कनेक्टर्स कहाँ कहाँ यूज होता है? जहाँ पे टिल्टेड एबटमेंट्स होते हैं, पायर एबटमेंट होते हैं। पायर एबटमेंट क्या होता है? एक टूथ यहाँ पे, एक मिसिंग है, एक टूथ यहाँ पे, एक मिसिंग है, एक टूथ यहाँ पे। तो इस पर थोड़ा 5 यूनिट बना के दोगे। 5 यूनिट बना भी दिया, लेकिन एक दांत फेल हो गया, ये वाला, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा यूनिट फेल हो जाएगा। ये लोग क्या करते हैं, इसका 3 यूनिट और यहाँ पे कनेक्टर दे दिया, और इसके 2 यूनिट, ठीक है, वो दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों में नॉन रिजिड कनेक्टर आता है, ठीक है। और रिजिड वाला तो आपको पता ही होगा, 3 जब सोल्डर करके करते हैं, ठीक है, एफपीडी का यूनिट होता है 3 यूनिट का, तो यहाँ पे सोल्डर करके कनेक्ट कर देते हैं, तो ये वाले रिजिड कनेक्टर्स है। और नॉन रिजिड आपको मैंने बता दिया, मेल और फीमेल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या हो गया, जो एबटमेंट है टिल्टेड या टिप्ड, ये टिल्टेड एबटमेंट है, ठीक है। और ये स्ट्रेट वाला है, तो इस पर आप अलग से यूनिट बनाओगे, इसमें पोर्शन होगा, और ये वाला यूनिट अलग होगा, फिर यहाँ पे कनेक्टर के साथ वो जुड़ जाएंगे, तो ये नॉन रिजिड कनेक्टर, ठीक है। कब दे सकते हैं नॉन रिजिड कनेक्टर? जब हमारा पाथ ऑफ इंसर्शन नहीं हम बना सकते, ठीक है। ऐसे केस में टिल्टेड एबटमेंट्स होते हैं, फिर पायर एबटमेंट में पीएम को नॉन रिजिड कनेक्टर्स देना चाहिए, ठीक है। तो कनेक्टर में कोई आपको दिक्कत हो तो मुझे बताइए, ठीक है। अभी नॉन रिजिड के सारे एग्जांपल्स होते हैं, टेन एंड मोटाइज, उसमें भी यही है कि मेल कंपोनेंट होगा, ठीक है, वो यहाँ पे होगा, फिर फीमेल कंपोनेंट नीचे होगा, वो दोनों जुड़ जाएंगे, और नॉन रिजिड कनेक्टर का फिर क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से इम्प्रेशन मटेरियल्स होते हैं, तो इससे पहले थोड़ा एबटमेंट के बारे में पढ़ लीजिए। एबटमेंट क्या है? वो नेचुरल टूथ है। अब वो जितनी भी डिपार्टमेंट आपके हैं ना, पेरियोडोंटिक्स, वो उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। एंडोडोंटिक्स, तो उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। प्रोस्टोडोंटिक्स, तो उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, उसमें टेपर्स वाले फीचर्स होने चाहिए। सारे जो हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में प्रिंसिपल्स में पढ़े थे, वो आपको ठीक से करने चाहिए, ठीक है। तो ये एबटमेंट में ये वाला फंडा आएगा, ठीक है। इन शॉर्ट, इट शुड बी हेल्थी टूथ, हाइट शुड बी प्रॉपर, टेपर शुड बी प्रॉपर, और वाइटल होना चाहिए कोई पॉसिबल। फिर नॉन वाइटल होना होता है तो फिर उसका टेपर अच्छा होना चाहिए, ग्रूव्स बनाने चाहिए, उसका इंक्लिनेशन अच्छा होना चाहिए। ऐसे करके सारे आइडियल रिक्वायरमेंट्स एबटमेंट के होते हैं, ठीक है। फिर रिटेनर, तो रिटेनर जो एबटमेंट पर लगता है वो, उसका क्लासिफिकेशन ही मेन है, इंट्राकोरोनल और एक्स्ट्रा कोरोनल। इंट्राकोरोनल मतलब अंदर जो आप देते हो वो, ठीक है, और एक्स्ट्रा मतलब उस क्राउन के ऊपर आप लगाओगे, ठीक है। फिर अलग अलग टाइप के मटेरियल के ऊपर रिटेनर का क्लासिफिकेशन है, मेटल सिरामिक होगा, मेटल होगा, सिरामिक होगा। ऐसे रिटेनर के टाइप्स और क्लासिफिकेशन आपको आने चाहिए। ऐसे तो कोई एमसीक्यू आता नहीं है, बट ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ये वाइवा में पूछ सकते हैं। आपकी थियरी एग्जाम तो है नहीं, वाइवा में आप जाओगे तो आपको पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब रिटेनर्स इन एबटमेंट, उसका क्लासिफिकेशन आना चाहिए, उसका फंक्शन क्या है, तो वो कनेक्ट करता है एबटमेंट के ऊपर, वो लग जाता है, और पॉन्टिक को एक सपोर्ट देता है, ठीक है। पॉन्टिक पर जो फोर्स आएगा
वो रिटेनर के थ्रू एबटमेंट पर आएगा और एबटमेंट फोर्स नीचे बॉन्ड पर डालेगा। ठीक है, तो एक सपोर्ट मैकेनिज्म है। अब आ गया इंप्रेशन मटेरियल्स। तो कैसे इंप्रेशन लेते हैं एफपीडी में? पहले आपको आइसोलेशन करना होगा कॉटन रोल से, सक्शन से, एट्रोपिन से। टिश्यू डिस्प्लेसमेंट करना होगा। यहाँ पे अगर आपको इंप्रेशन लेना है मार्जिन का, ठीक है, तो आपको गम्स को थोड़ा डिस्प्लेस करना होगा। तो आप कैसे करोगे? कॉर्ड यूज़ करोगे, जिंजाइवल रिट्रैक्शन कॉर्ड, और उसमें थोड़े एजेंट्स होंगे, केमिकल्स होंगे जो जिंजाइवा को थोड़ा सेपरेट रखे, हीमोस्टैटिक कर दे। तो कौन कौन से हो? वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरस सल्फाइड और एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो एमसीक्यू कैसा आता है? कौन सा आप ये एजेंट यूज़ नहीं कर सकते हो हार्ट पेशेंट्स में, तो आपको ये एपिनेफ्रिन वाला यूज़ नहीं करना है। फिर आप इलेक्ट्रोसर्जरी से, इलेक्ट्रिक अप्लायंस से भी आप ये जिंजाइवा को रिट्रैक्ट कर सकते हो, टिश्यू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वो पेसमेकर और इंसुलिन जहाँ भी यूज़ करते हैं वहाँ पे आप नहीं दे सकते। इलेक्ट्रोड मस्ट नॉट कॉन्टैक्ट टीथ। ठीक है, तो ये जिंजाइवल रिट्रैक्शन का क्वेश्चन जो है उसमें कौन सा एजेंट यूज़ होता है वो आपको पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, ठीक है, फेरस सल्फेट होता है। फिर रिट्रैक्शन कॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोसर्जरी से भी वो होता है। अब कभी कभार मैकेनिकल भी आता है, उसमें आता है कॉपर बैंड। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स आपको याद होनी चाहिए। अब ये एल्जीनेट के बारे में बताया है। हाइड्रो जो होता है, इलास्टोमर और एल्जीनेट, इसमें हाइड्रोकॉलर्स आया। अगर और एल्जीनेट यूज़ कर सकते हो आप एफपीडी में। और नॉन एक्वस इलास्टोमर्स, ठीक है, उसमें पॉलीसल्फाइड, सिलिकॉन, पॉलीथर। तो आप अभी इलास्टोमरिक से भी इंप्रेशन ले सकते हो एफपीडी में। ठीक है, तो ये जब आप इलास्टोमरिक का आता है क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। देखो, यहाँ पे लिखना है पॉलीथर, यहाँ पे लिखना है पॉलीसल्फाइड, यहाँ पे लिखना है ए सिलिकॉन और यहाँ पे लिखना है सी सिलिकॉन, ऐसे करके। फिर यहाँ उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है, कंपोजिशन, फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डायमेंशनल स्टेबिलिटी, फिर उसको कितने टाइम में निकालना है, सेटिंग टाइम, मिक्सिंग टाइम। ये सब आपको जब भी ये कोई मटेरियल आते हैं या कोई सीमेंट्स आती है, रिस्टोरेटिव मटेरियल आते हैं, इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ये ऐसे आपको बना देना है। ठीक है, अब एल्जीनेट का क्या क्या दो प्रॉपर्टीज है? एक तो इम्बिबिशन, वो पानी अंदर ले लेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा, साइज थोड़ी बढ़ जाएगी, इंप्रेशन डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और सिनेरेसिस, तो पानी चला जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा? पानी चला जाने के बाद इंप्रेशन डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो आपको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर या थोड़े वाटर वाले एटमॉस्फेयर में रखना है। लेकिन पानी में डुबा नहीं देना है, वो गलत चीज़ है। ठीक है, थोड़ा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ड्राई में नहीं रखना है। अब रिवर्सिबल हाइड्रोक्लोराइड की प्रॉपर्टीज, वो क्या है? सॉल्यूशन फेज जो होता है वो एक जेल फेज बन जाता है, और ये रिवर्सिबल है, तो ये जेल से सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा जब आप उसको हार्ड करोगे, कूल करोगे, तो वो हार्ड बन जाएगा। ठीक है, हार्डन्स ऑन कूलिंग। और जब हीट करोगे तब वो लिक्विड बन जाएगा, उसकी ये प्रॉपर्टी है। अब उसके फायदे, एक्यूरेट है, और लॉस, कोई उसको यूज़ नहीं करता है क्योंकि वो टेक्निक सेंसिटिव है, वाटर बाथ्स चाहिए उसको, फिर वो उसकी बहुत खराब स्मेल आती है। ठीक है, अगर इज ऑल्सो है डुप्लीकेटिंग मटेरियल, डेंचर डुप्लीकेट करना है तो भी एक अच्छा मटेरियल है अगर। अब इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलोइड एल्जिनेट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल।
उसमें क्या करना है, पाउडर को मिक्स करना है, ठीक है, फिर उसको मैनिपुलेट करना है, फिर क्या करना है, उसकी कलर चेंज के हिसाब से आप देख सकते हो सेट हो कि नहीं, ठीक है। पॉवर टाइम उसका 10 मिनट के अंदर है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है, तो डायमेटिस अर्थ है और पोटेशियम एल्जिनेट है, ठीक है। उसका कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए। फिर वो जब सेट होता है, पोटेशियम एल्जिनेट तो होता है और कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है। तो वो कैल्शियम एल्जिनेट बन जाता है इनसॉल्युबल सॉल्ट। मोस्ट इनएक्यूरेट, ठीक है, उसका डिसएडवांटेज ये है कि इनएक्यूरेसी उसकी ज़्यादा है, क्योंकि उसके पानी के साथ प्रॉपर्टीज उसकी चेंज होती है, ठीक है। अब एमसीक्यू कैसे कैसे आते हैं एल्जिनेट के, अगर आपको सेटिंग टाइम डिक्रीज करना है, ठीक है, तो क्या करना है, आपको गर्म पानी यूज़ करना है तो तुरंत ही वो सेट हो जाएगा, और वाटर पाउडर रेशियो कम करना है। तो ये एमसीक्यू बार बार आते हैं रिपीटेडली, ये आपको गलत नहीं होना चाहिए। कैसे सेटिंग टाइम बढ़ाते हैं और कैसे सेटिंग टाइम कम करते हैं, ठीक है। अब इलास्टोमेरिक के बारे में यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। इलास्टोमेरिक में आएगा पॉलीसल्फाइड, सी सिलिकॉन, पॉलीथर और ए सिलिकॉन। पॉलीसल्फाइड के अंदर एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं, डीएम में भी आते हैं, कौन सा प्रोडक्ट रिलीज होता है, तो वाटर आएगा। वो हाइड्रोफोबिक है, उसको पानी पसंद नहीं, ठीक है, जहाँ पानी होगा वो वहाँ से दूर भागेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, प्रोन टू सिनेरेसिस, ठीक है, वो कभी कभार ड्राई हो जाता है, पानी उसको पसंद नहीं और पानी भी रिलीज करता है, तो इसलिए उसको आप याद रखना है कि उसको पानी पसंद नहीं, इसलिए उसका बाय प्रोडक्ट पानी है। बाय प्रोडक्ट का मतलब जब वो सेट होता है तब वो पानी थोड़ा बाहर निकाल देगा, ठीक है, बाय प्रोडक्ट उसको रिलीज कर देगा। पोरिंग टाइम उसका बहुत ज़्यादा है, 30 to 45 मिनट्स है, ठीक है। लेकिन पॉलीसल्फाइड जो है ना, उसकी स्मेल बहुत खराब आती है, इसलिए ये लोग यूज़ नहीं करते थे। अनप्लेजेंट ऑर्डर, ऐसा भी एक एमसीक्यू है। फिर आता है सी सिलिकॉन, कंडेंसेशन सिलिकॉन, इसमें बाय प्रोडक्ट कौन सा है, तो अल्कोहल, ठीक है। और जब अल्कोहल इवापोरेट होता है तब इम्प्रेशन श्रिंक होता है, तो अल्कोहल इवापोरेट होने से पहले आपको पोर कर देना है, तो 30 मिनट्स में पोर कर देना है, ठीक है, तुरंत ही पोर कर देना है, इमीडिएटली, ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि 30 मिनट वेट करना है बाद में पोर करना है। फिर आ गया पॉलीथर, तो पॉलीथर क्या है, इट्स वेरी स्टेबल, ठीक है, इसलिए वो सिंगल स्टेप वाटर मोल्डिंग में यूज होता है, ठीक है। इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वाटर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो यहाँ देखिए पॉलीथर है वो हाइड्रोफिलिक है, तो जहाँ पे सलाइवेशन होगा, जहाँ पे पानी है, जहाँ पे आइसोलेशन ठीक नहीं है, वहाँ पे आपको ये पॉलीथर नहीं यूज करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, ऐसे मटेरियल्स, ठीक है। पोरिंग टाइम 60 मिनट्स, तो एक अच्छी बात है, आप उसमें डिले कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज क्या है कि वो बहुत स्टीफ होता है, तो वो जब कांच से बाहर निकालोगे तो वो निकल जाएगा, इसलिए उसको खाली हम बॉर्डर मोल्डिंग में यूज़ करते हैं। उसकी स्टिफनेस का फ़ायदा बॉर्डर मोल्डिंग में ही हमको चाहिए, ठीक है। अब
एडिशन सिलिकॉन। एडिशन सिलिकॉन क्या है, उसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं, सो दिस इज द मटेरियल फॉर इम्प्रेशन। ठीक है, उसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं होता है, अच्छी डिटेल्स रिकवर करता है, इलास्टिक रिकवरी है, डायमेंशनली स्टेबल है, उसमें थोड़ी देर के बाद, लंबे टाइम के बाद कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए आप इसको बहुत लंबे समय तक ओवर करने में देर कर सकते हो, कैन और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, आपको विनाइल या नाइट्राइल ग्लोव्स यूज करना है। ठीक है, लेटेक्स ग्लोव्स यूज नहीं करना है। ठीक है, लेटेक्स में क्या होता है, सल्फर होता है, तो सल्फर क्या करेगा, सल्फर उसकी प्रॉपर्टी को इनहिबिट करेगा, वो जो सेट होता है ना, वहाँ पे सल्फर थोड़ा इंटरफियर करेगा, सेटिंग नहीं होने देगा, इसलिए लेटेक्स नहीं हम यूज़ करेंगे जब हमको ये यूज़ करना है तब। ठीक है, अब जिप्सम प्रोडक्ट्स, ये तो हम जब डेंटल मटेरियल्स पढ़ाएंगे तब आपको ये करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने पॉन्टिक किया, कनेक्टर किया, रिटेनर किया, एबटमेंट्स भी किया। ठीक है, जिंजर रिट्रैक्शन भी किया। तो ये एफपीडी के मोस्ट ऑफ द कॉमन टॉपिक्स जिसमें से एमसीक्यू आते हैं वो सब आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अभी आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। मार्जिन्स भी करवा दिए हमने, कहाँ कौन सी मार्जिन्स यूज होती है। ठीक है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ टूथ प्रिपरेशन भी करवा दिया। एमसीक्यूज इसमें से कहीं ना कहीं से ये नोट्स में से ही आएंगे, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, फिर ये जितने भी क्लासिफिकेशन है वो आपको याद रखना है। नोबल मेटल्स कौन कौन से है, तो गोल्ड है, वो टार्निश रेजिस्टेंस देता है, प्लेटिनम है, वो स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है, मेल्टिंग टेम्परेचर उसका अच्छा है, पैलेडियम स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ पढ़ना है और आराम से इसमें से आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन तो आपको अपने हिसाब से थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब बेस मेटल एलॉय में क्या डिफरेंस है, नोबल में क्या है और हाई नोबल में। हाई नोबल में ये है कि उसमें 40% तो गोल्ड होना ही चाहिए। ठीक है, इसलिए उसको हाई बोलते हैं, हाई गोल्ड या हाई नोबल एलॉय। नोबल में क्या होता है, 25 से ऊपर भी होना चाहिए नोबल। ठीक है, और बेस मेटल में क्या होगा, 25 से कम वो चलेगा। ठीक है, तो बेस मेटल में सबसे कम नोबल मेटल्स होते हैं, नोबल में 25 तो होना ही चाहिए, और हाई नोबल उसमें 40 तो होना ही चाहिए। ठीक है, 40% गोल्ड स्पेसिफिक। गोल्ड एलोइस का क्लासिफिकेशन, टाइप 1 जो है सॉफ्ट है, मीडियम, हार्ड और एक्स्ट्रा हार्ड। टाइप 1 में क्या होता है, इट इज द वीकेस्ट बट प्योर गोल्ड, वो आप क्लास 5 में ही दे सकते हो। ठीक है, फिर थोड़ा उसको वीकनेस जो थी उसको निकाल दिया। ठीक है, उसमें थोड़ा और मेटल्स ऐड कर दिया और 77% ही गोल्ड रखा, वो आप इनलेस में दे सकते हो। ठीक है, कस्प कवरेज नहीं किया इसलिए उसको बोलते हैं इनले। ठीक है, फिर क्राउन देना है तो 72% गोल्ड का क्राउन दे सकते हो। ठीक है, हार्ड। और एक्स्ट्रा हार्ड जो है वो आप बहुत ही स्ट्रांग होता है, आरपीडी कास्टिंग्स में दे सकते हो, पोस्ट एंड कोर में यूज कर सकते हो, क्लास्प और ब्रिजेस। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन का भी एमसीक्यू आता है। एक्स्ट्रा हार्ड गोल्ड इज यूज्ड इन, हार्ड गोल्ड इज यूज्ड इन टाइप 3। ठीक है, अब थोड़ी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज समझ लीजिए, थोड़ा डीएम का भी ये थोड़ा काम आएगा आपको। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब भी आता है ना, तो वो क्या होता है, यहाँ से आप प्रेस करोगे
और यहाँ से प्रेस करोगे, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फ्रैक्चर नहीं होगा, ठीक है। तो वो फोर्स जितना सहन करता है, वो उसकी स्ट्रेंथ जितनी है कि वो विथस्टैंड कर सकता है, उसको बोलेंगे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, आपने इस साइड खींचा और इस साइड खींचा तो ये टूटेगा। तो ये टूटने से पहले जब तक उसने विथस्टैंड किया, उस उतनी स्ट्रेंथ उसमें थी, वो स्ट्रेंथ को बोलेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिर आता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, ठीक है। वो क्या हो गया, आपने बेंड करने की कोशिश की, तो जब तक वो बेंड नहीं होता है तब तक जो वो स्ट्रेंथ उसमें थी, वो रेजिस्ट किया, तब तक वो स्ट्रेंथ को बोलेंगे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर फ्रैक्चर टफनेस, ठीक है। तो क्रैक, थोड़ा क्रैक हो गया आगे, फिर वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। क्रैक का प्रोपेगेशन जो होता है, क्रैक हो गया एक मटेरियल में, तो वो आगे आगे जाएगा नहीं, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को बोलेंगे फ्रैक्चर टफनेस। उसका मतलब ये है कि आपने कोई ग्लास को गिराया तो क्रैक हो गए लेकिन टूटा नहीं, ठीक है। टूट जाएगा तो उसकी फ्रैक्चर टफनेस कम है, फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम फ्रैक्चर टफनेस, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट वो है, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जो स्ट्रेस की और स्ट्रेन की जो लाइन है ना, उसको जो हम करते हैं ना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वो हो गया आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये जितना ऊपर रहेगा उतना ज़्यादा स्टिफ रहेगा, वो बेंड नहीं होगा, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ मटेरियल्स की अच्छी होनी चाहिए। वो डिफॉर्म होता है लेकिन परमानेंट चेंज इन शेप और साइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये मटेरियल का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से आपको यूसेज करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रिटल, तो जो टूट जाता है वो, तो ब्रिटल में फ्रैक्चर टफनेस कम होगी। फिर डक्टिलिटी, वो क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंदर आप उसको आराम से कोई भी शेप में चेंज कर सकते हो या फिर डिफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आपने खींचा तो वो शेप चेंज कर देगा। वायर जो होते हैं ना उसमें डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। मेलिएबिलिटी, ठीक है। तो मेलिएबिलिटी क्या है, वो आप जब कंप्रेस करोगे, ठीक है, तब वो डिफॉर्म होंगे, उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। तो गोल्ड की मेलिएबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। फिर आता है इलोंगेशन, ठीक है। आप कोई मटेरियल को कितना बर्निश कर सकते हो, ठीक है, कितना वो इलोंगेट हो सकता है, उसकी इलोंगेशन की परसेंटेज, ठीक है, कितना आप उसको बर्निश कर सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, तो वो क्या है, तो ऐसा बता रहे कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो वो कितना एक्सपांड होता है, तो वो बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। तो वो डायरेक्टली टेम्परेचर चेंज के ऊपर है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उतना ज़्यादा वो थर्मल एक्सपांशन होगा। इसीलिए तो जब पोर्सिलेन के बारे में हमने देखा, तो पोर्सिलेन का जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन था ना, वो क्या होता है, मेटल से कम होता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे थोड़े चेंजेस आएंगे लेकिन यहाँ तो आएंगे ही नहीं, ठीक है, वो ज़्यादा टेम्परेचर विथस्टैंड कर पाएगा, ठीक है। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन के डिजिट्स देख लीजिए, 30, कंपोजिट का 30 है, पोर्सिलेन का 6 है, एमलगम का 25 है, गोल्ड का 14 है, टूथ का 11.4 है।
तो ये एग्जाम में आपको एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, विच ऑफ द मटेरियल हैज द क्लोजेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, जब हाई यील्ड स्ट्रेंथ होती है ना कोई मटेरियल की, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो कभी भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है। आप कितना भी चेंज करने की ट्राई करो तो वो एक शेप नहीं लेगा, वो कोई ना कोई विथस्टैंड करेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ उसी उसकी अच्छी है कि वो विथस्टैंड करेगा। फिर हाई इलास्टिक मॉड्यूलस। ठीक है, तो वो क्या है, उसका इलास्टिक मॉड्यूलस इतना ज़्यादा है कि वो स्टिफ होता है। ठीक है, वो फ्लेक्स नहीं करेगा। तो ऐसे अलग अलग आपको याद रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन तो वो क्लोज टू टूथ है, 11.4। ठीक है, गोल्ड का। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा किसका जो कोएफिशिएंट जो है, ठीक है, थर्मल एक्सपांशन वो कितना होता है। कोरोजन रेजिस्टेंट, ठीक है, तो गोल्ड वो है कोरोजन रेजिस्टेंट। और मिनिमल वेयर ऑफ अपोजिंग डेंटिशन। ठीक है, ऐसा रिस्टोरेशन या ऐसा क्राउन आपको देना चाहिए, ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाहिए जो सामने वाले टूथ को मिनिमम वेयर आपको करवाए। ठीक है, अब आता है प्रोविजनल क्राउन्स। एक पेशेंट आपके पास आया, उसको आगे के दांत है ना वो काला था, नॉन वाइटल था इसलिए, और वो टीचर है, तो इस पर आपको दांत लगाना है, तो आप क्या करोगे? तो आपको एक डुप्लीकेट क्राउन, प्रोविजनल क्राउन, टेम्पररी क्राउन, परमानेंट क्राउन आएगा तब तक उससे पहले बनाकर देना है। तो उसमें आप क्या करोगे? उसकी पहले पट्टी इंडेक्स लोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? फिर इसको प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, पट्टी इंडेक्स पता है ना आपको, जो कंडेंसेशन सिलिकॉन होता है। ठीक है, वो पट्टी इंडेक्स दांत पर लगाओगे तो दांत का शेप उसमें रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, पट्टी इंडेक्स के अंदर। फिर दांत को प्रिपेयर करना है तो दांत छोटा हो जाएगा। फिर पट्टी इंडेक्स के अंदर ऑटो पॉलीमराइजिंग मटेरियल जो आता है, टेम्पररी प्रोविजनल मटेरियल रेजिन का, वो यहाँ पे मिक्स करके डाल देना है। फिर इसको वापस पट्टी इंडेक्स को दांत पर बिठा देना है। तो ये हो जाएगा आपका, जब वो सेट होगा ऑटो पॉलीमराइजिंग मटेरियल, ठीक है, तब वो आपको नया क्राउन वो बन जाएगा। ठीक है, टेम्पररी क्राउन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक हो गया डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट में क्या है, पेशेंट के मुंह पर ही आपको डायरेक्ट बनाना है। दूसरा क्या हुआ, इम्प्रेशन लिया और आपको क्या करना है, लैब के अंदर भेज देना है। ठीक है, वो वहाँ पर बनकर आएगा और फिर वहाँ पे आपको लगा देना है। ठीक है, अब रेडीमेड क्राउन्स भी आते हैं, रेडीमेड मोल्ड भी आते हैं। तो पॉलीकार्बोनेट के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, स्टेनलेस स्टील के भी होते हैं, और सेलुलोज एसीटेट का भी होता है। ठीक है, अब
कौन सा मटेरियल होगा, तो रेजिन ही यूज होता है, पॉलीमिथाइल मिथाइक्रिलेट, ठीक है, पॉलीइथाइल मिथाइक्रिलेट कंपोजिट वाला होगा, तो रेजिन्स मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। अब मेटल सिरामिक क्राउन्स और ऑल सिरामिक क्राउन्स, ठीक है, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे मेटल आएगा नीचे, फिर ऑक्साइड आएगा और पोर्सलिन आएगा, ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव लेयर मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है, तभी पोर्सलिन जाकर बॉन्ड होगा, ठीक है, तो वो थोड़ा डार्क होता है, इसलिए वो थोड़ा एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, पोर्सलिन और मेटल के बीच ऑक्सीडेटिव लेयर या ऑक्साइड लेयर is compulsory for the porcelain to bond to metal alloy, ठीक है। अब जब आप मेटल सिरेमिक क्राउन बनाओगे, ठीक है, तो कहाँ कहाँ कितना कितना वो डायमेंशन होना चाहिए, कितना प्रिपरेशन करना चाहिए, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले तो आएगा ओपेक पोर्सलेन, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब मेटल होगा उसके ऊपर आपको ओपेक पोर्सलेन लगा देना है, तो वो क्या होगा, उसका नीचे का जो शेड होगा वो चिप जाएगा, तो इट प्रोवाइड्स पोर्सलेन मेटल बॉन्ड, ठीक है, और वो मास्किंग करना है आपको 0.1 mm की थिकनेस से, ठीक है। फिर ओपेक के ऊपर बॉडी या डेंटिन पोर्सलेन, ठीक है, वो जो पेशेंट का शेड आपने सिलेक्ट किया है वो आपको लगाना है, पहले ओपेक लगाना है, फिर आपको बॉडी या डेंटिन लगाना है, और फिर ऊपर आपको इंसाइजल या इनेमल आपका देना है, ठीक है। इंसाइजल और इनेमल जो आप प्लेस करोगे वो ट्रांसल्यूसेंसी देने के लिए, नेचुरल अपीयरेंस के लिए, ठीक है। तो ये उसके सारे डायमेंशन है, कहाँ कहाँ कितना रिडक्शन आपको करना है, ठीक है। अब क्यों मेटल सिरेमिक क्राउन्स फेल होते हैं, ठीक है, तो पोर्सलेन मेटल की जगह पर फेल होता है, तो उसका रीज़न ये है कि ऑक्साइड लेयर में नहीं बना था, फिर ऑक्साइड और मेटल की जगह पर होता है तो मेटल कंटामिनेशन के कारण, और पोर्सलेन और ऑक्साइड के बीच, तो पोर्सलेन कंटामिनेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इजी बना दिया है ये लोगों ने, आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, नीचे मेटल था, अब ये ऑक्साइड लेयर आ गया और ये पोर्सलेन, तो पोर्सलेन और मेटल के बीच दिक्कत होती है, तो ये वाला गलत है, ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड और मेटल के बीच गलत होता है तो मेटल कंटामिनेशन होता है, ऑक्साइड और पोर्सलेन तो पोर्सलेन कंटामिनेट होता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा रखना भी पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एमसीक्यूज आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर कोहेसिव फेलियर्स, पोर्सलेन टू पोर्सलेन इफ देयर आर वॉइड्स, ठीक है, जब आपने कंडेंस किया और वॉइड रह गया, तो पोर्सलेन विल नॉट फ्यूज टू पोर्सलेन, ऑक्साइड और ऑक्साइड नहीं होगा, तो उसमें रीज़न क्या है, ऑक्साइड लेयर ठीक है, और मेटल वो तो कभी बनता ही नहीं, वो तो फ्यूज हो ही जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। फिर आ गया ऑल सिरामिक क्राउन्स, ठीक है, कंप्लीट पोर्सलेन, वो हो गई आपके ग्लासी सिरामिक्स, फेल्ड्स्पाथिक और लिथियम डाइसिलिकेट के, ठीक है,
वो आपको कैसे एच करना है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से एच करना है और उस पर आपको साइलेंट कपलिंग एजेंट लगाना है ताकि वो नीचे वाले टूथ पर और ऊपर पोर्सलेन पर बॉन्डिंग एजेंट की तरह काम करे। ठीक है, ये कपल के काम करता है, कपलिंग करता है। ठीक है, नीचे जो एच हुआ है वो टूथ सरफेस पर और सिरामिक या पोर्सलेन की सरफेस पर वो बॉन्डिंग करवाएगा। नॉन ग्लासी सिरामिक कौन कौन से, जिरकोनिया और एल्यूमिनिया। ठीक है, आप वो ल्यूटिंग करके कोई सीमेंट करके आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो सिरामिक क्राउन्स जो कंप्लीट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ग्लासी और नॉन ग्लासी। ग्लासी में फेल्सपैथिक और लिथियम डाइसिलिकेट और नॉन ग्लासी में जिरकोनिया और एल्यूमिनियम। ठीक है, अब आएगा हमारा पोर्सलेन विनियर्स। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कभी कभार आगे के दांत पर क्या करते हैं, विनियर्स हम रखते हैं। ठीक है, इट इज प्योरली एस्थेटिक। ठीक है, इट इज ऑन द फेशियल सरफेस, तो इट इज कन्फाइंड टू इनेमल ओनली। ठीक है, ओनली इनेमल इज प्रिपेयर्ड। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग डायमेंशंस होंगे। ठीक है, जिंजाइवल थर्ड में 0.3 mm, फेशियल में 0.5 और इंसाइजल 1.1 to 2 mm। ठीक है, अब कभी कभार क्या होते हैं, पेशेंट आता है और हम सोचते हैं कि थोड़ा नया कुछ करना है, तो एक दांत नहीं है तो पीछे ये सपोर्ट लेकर ये दांत लगा सकते हो। इसको बोलते हैं मैरीलैंड ब्रिज। उसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ पे ये विंग्स देख रहे हो, ये विंग्स, ये आपने एच कर दिया वहाँ पे। ठीक है, फिर वो आपने कंपोजिट से लगा दिया है, रेजिन वाला जो सीमेंट होता है ना, उससे आपको लगा देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैरीलैंड ब्रिज। अब ह्यू, क्रोम और वैल्यू आपको पता ही होगा। ह्यू मतलब कौन सा कलर, लाल पीला। फिर क्रोम मतलब उसका कितना सैचुरेशन है, इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, और वैल्यू मतलब डार्क, लाइट है कि डार्क है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने रेड कलर लिखा तो रेड हो गया ह्यू। फिर क्या हुआ, रेड में तो थोड़ा लाइट होगा, मतलब रेड की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी कम होगी, तो वो क्रोमा ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कितना वो ज़्यादा रेड है, ज़्यादा कम रेड है, ऐसे करके आप क्रोमा डिसाइड करोगे। ठीक है, और लाइट रेड है और डार्क रेड तो उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो वैल्यू होगी वो आप कितने में, 0 से 100 में मेजर करोगे। 100 मतलब वाइट, 0 मतलब ब्लैक। ठीक है, और ये कलर सिस्टम किसने दिया हुआ है, मंसल ने। ह्यू, क्रोमा और वैल्यू। अब कभी कभार ये टर्मिनोलॉजीज भी आपके एग्जाम में आते हैं। मेटामेरिज्म क्या होता है, अलग अलग लाइट दोगे तो अलग अलग वो कलर में आएंगे। इसीलिए तो जब आप शेड सिलेक्शन करते हो तो आपको विजिबल लाइट में देखना है। ठीक है, आपकी चेयर की लाइट में नहीं देखना है। फ्लोरेसेंस, ठीक है, जब आप यूवी लाइट से एक्सपोज करोगे ना तो वो विजिबल लाइट एलिमिनेट करेगा। ठीक है, तो उसकी फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी है, और जितनी फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी होती है उतना टूथ की मैचिंग होती है प्रॉपर।
ठीक है, यूवी लाइट के ऊपर से फ्लोरेसेंस डिसाइड होता है। ओपेलेसेंस, ठीक है, तो जब रिफ्लेक्टेड लाइट होगी तो वो ब्लू दिखेगा, और जब ट्रांसमिटेड होगी तो वो ऑरेंज रेड दिखेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग लाइट का अलग अलग व्यू है, ब्लू और रेड। ब्लू होगा रिफ्लेक्टेड में और ट्रांसमिटेड में ऑरेंज रेड। ठीक है, अब शेड सिलेक्शन में कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है। पहले आएगा वैल्यू। ठीक है, आपको मिडिल थर्ड ऑफ क्राउन में देखना है, फिर आपको वैल्यू पता चलेगी कि लाइट है कि डार्क है। ठीक है, फिर क्रोमा, वो कितना वो कलर पर जाता है। ठीक है, तो सर्वाइकली देखना है, और ह्यू, तो वो इनसाइडल देखना है। ठीक है, तो ह्यू क्रोम वैल्यू अलग अलग पोर्शंस को देखकर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। कैसे, बताइए ऑर्डर कौन सा है। तो वैल्यू, क्रोम और ह्यू। ठीक है, ये उसका ऑर्डर है। यहाँ पे मिडल थर्ड, सर्वाइकल थर्ड और इनसाइजल थर्ड। ठीक है, उसका क्राइटेरिया देखने के लिए। ठीक है, अभी तो कुछ बचा नहीं है, बाकी सब तो आपको डीएमएम करवा देंगे, सीमेंट वगैरह। ठीक है, ये कैरेक्टराइजेशन है। टोबैको वाले पेशेंट आते हैं, उसमें आप जानबूझकर थोड़ा स्टेन्स लगाओगे, वो होगी आपका स्टेनिंग। और ग्लेजिंग, ठीक है, वो आपको सरफेस पर थोड़ा ग्लेजिंग करना होगा ताकि वो नेचुरल एस्थेटिक इफेक्ट आए। ठीक है, तो वो कैरेक्टराइजेशन कब देते हैं, कोई पेशेंट आता है और टोबैको वाला है, तो आप वो उस पे बोलना है कि हम थोड़ा नेचुरल फीलिंग जैसा रखेंगे। ठीक है, तो ही विल नॉट डिनाई दिस केस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट हो, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर में कोई टॉपिक समझ ना हो, तो हमारे पास एम्पल टाइम है, आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। हमें कोई जल्दी नहीं लेक्चर पूरा करने की। आपको कोई डाउट्स हो, कुछ समझ ना हो, तो हम वो फिर से समझा सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, एपीडी तो टिप ऑफ द टंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, पॉन्टिक के बारे में, कनेक्टर के बारे में, रिटेनर के बारे में। ठीक है, सिरामिक्स के बारे में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा इजी लगेगा। ठीक है, ऑर्थो में बहुत सारे अप्लायंस होते हैं, वो याद रखना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखोगे तो एफपीडी में थोड़ा इजी है। तो आज के लेक्चर में गाइस इतना काफ़ी है। अगर आपको ये यूट्यूब पर लेक्चर मिलने का मौका मिला हो बाद में, अभी तो नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तो खाली एप्लीकेशन में लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं। तो जब भी आप यूट्यूब पर देख रहे हो, तो आपको हमारी वेबसाइट पर जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर देना है। अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज है गाइस, ये हमारी वेबसाइट है। टेस्ट सीरीज, इम्पोर्टेंट नोट्स। ठीक है, बाद में हम मैराथन लेक्चर्स भी चालू करने वाले हैं, जिसमें सारे दिन एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम, ऐसा भी प्लान है। फिर एक वर्कशॉप का भी प्लान है, अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सेंसिटाइजेशन मिल जाएगा कि ऐसा है तो ऐसे लिखना है, ऐसा है तो ऐसे लिखना है। कभी कभार रटना भी ज़रूरी होता है, कभी कभार समझना भी ज़रूरी होता है। तो आपकी एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस आप करो, ऐसी मेहनत करनी है आपको। कोई डाउट हो तो अभी पूछिए, बाद में भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि अभी लेक्चर पूरा हो गया अभी पूछिए, कोई बात नहीं। तो गाइज, इट्स टाइम फॉर टेलिंग यू बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम एंड गुड नाइट।